الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم اپنا لیکچر نمبر 4 شروع کریں گے ہمارے اس پروگرام میں، جس میں ہمارا مقصد ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن کو کیسے پڑھا جائے، اور بعد میں ہم انشاءاللہ شروع کریں گے قرآنک جو بیسک گرامر ہے، جس کے ذریعے سے آپ قرآن عظیم کا ترجمہ خود کرنا سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم جانیں گے آرٹیکولیشن پوائنٹس کے بارے میں، یعنی جن کو ہم نے مخارج کا نام دیا ہے، اور یہ لیکچر جو ہے، یہ جو ہم نے ابھی تک 3 لیکچرز اس سے پہلے اٹینڈ کیے ہیں، اس سے پہلے کنڈکٹ کیے ہیں، انہی لیکچرز کا یہ ایکسٹینشن ہے۔ کیونکہ ابھی تک ہم نے جو پڑھا، یہ جانا کہ ہمارے منہ میں، ہمارے ہونٹوں سے لے کے اس کے بعد ہمارے دانت، اس کے بعد ہمارے جو زبان ہے، اس کے بعد ہمارا جو حلق ہے جس کو ہم گلا کہتے ہیں، اس تمام حصے میں ہمارے پاس جو عربی میں حروف ہے جن کو ہم کہتے ہیں حروف الہجا، وہ الگ الگ حصے سے نکلتے ہیں، اور ان حصوں کو ہم نے نام دیا تھا مخارج الحروف، یعنی حروف کے نکلنے کی جگہ۔ اور ہم نے یہ جانا تھا کہ بنیادی طور پر جو ہمارے حروف ہے، جن کی تعداد عربی میں 29 ہے، 29 ہے، وہ 5 حصوں سے ادا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے الحلق یعنی حلق کے بارے میں پڑھا۔ حلق یعنی جو ہمارا گلا ہے، اس میں سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پچھلے لیکچر میں ہم نے اللسان زبان کے بارے میں جانا کہ زبان کے مختلف حصے مختلف جگہ پہ اندر یعنی تالو کے ساتھ، یا مختلف جو ہمارے دانت ہے، دانتوں کے درمیان سے مل کے ہمارے اکثر حروف ادا ہوتے ہیں، ان حروف کو ہم کہتے ہیں حروف الوسطی۔ اس کے بعد وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا ہو، ان حروف کو ہم کہتے ہیں حروف شفتی یا حروف شفوی، کیونکہ ہمارے جو ہونٹ ہے، ہونٹ ملانے سے مختلف طریقے سے ہمارے کچھ حروف ادا ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا تیسرا مخرج ہوا۔ چوتھا مخرج جو ہے وہ ہے الجوف، یعنی منہ کا خالی حصہ، جو منہ بند کرنے کے بعد ہمارا ایک خالی حصہ رہتا ہے ہمارے منہ سے لے کے، یعنی دانتوں کے درمیان سے لے کے برابر حلق تک، اس کو ہم نے نام دیا تھا الجوف۔ اور پانچواں جو مخرج ہے وہ ہے الخشیوم۔ الخشیوم کہتے ہیں ناک کے بانسے کو، یعنی ناک کے اندر جو خالی سپیس ہے، اس سپیس کو ہم کہتے ہیں الخشیوم۔ یہ ہمارے بنیادی طور پر 5 حصے ہیں ہمارے منہ میں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ ابھی تک جو ہم نے جانا وہ حروف الحلقی کے بارے میں جانا، ایسے حروف جو ہمارے حلق سے، ہمارے گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پچھلے لیکچر میں ہم نے اللسان یعنی زبان کے اور دانتوں کے درمیان سے جو حروف ہوتے ہیں، ان حروفوں کو جانا کہ وہ حروف کون سے ہیں اور کیسے وہ ادا ہوتے ہیں۔ آج کا لیکچر اسی کا ایکسٹینشن ہے، ہم اور کچھ حروف جانیں گے۔ تو جو حضرات دیر سے جنہوں نے جوائن کیا ہے یا جو چاہتے ہیں کہ ریپیٹ کرے، ہمارے پورے جو لیکچرز ہے یہ بعد میں ہم ان کو اپنے چینل پہ یعنی یوٹیوب چینل پہ ان کو ہم شائع کر دیتے ہیں۔ ابھی تک ہمارے 3 لیکچرز ہوئے ہیں اس سیشن کے۔ تو ہمارا پہلا لیکچر جو تھا وہ مخارج میں یعنی جو تجوید میں ہمارا انٹروڈکٹری لیکچر تھا۔ اس کے بعد دوسرا لیکچر، اس میں ہم نے یہ جانا کہ تجوید میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے سیکھنے کی، یعنی آرٹیکولیشن پوائنٹ جن کو ہم نے مخارج کا نام دیا۔
اس کے بعد ہم نے تیسرا لیکچر پچھلے لیکچر میں پچھلے درس میں پچھلے ہفتے میں اس میں بھی ہم نے آرٹیکولیشن پوائنٹ یعنی ایسے حروف جو منہ سے ادا ہوتے ہیں، حروف الوسطی یعنی جو ہمارے دانتوں اور ہمارے زبان سے ادا ہوتے ہیں، یہ تینوں لیکچرز ہمارے یوٹیوب چینل پہ اگر کوئی ساتھی اس کا اعادہ کرنا چاہے، ریپیٹ کرنا چاہے تو وہ ان ڈاکٹر خالد حکیم یوٹیوب پہ چینل پہ دیکھ کے ان کا اعادہ کر سکتا ہے۔ آج ہم جانیں گے ایکسٹینشن میں حروف الوسطی یعنی ایسے حروف جو ہمارے منہ سے ادا ہوتے ہیں، یعنی ایسے حروف جو دانتوں اور ہماری زبان کے مختلف حصے ملانے سے ادا ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ حروف جو ہمارے پچھلے لیکچر میں جو رہ گئے تھے ان کے بارے میں ہم آج جانیں گے۔ اس میں سے سب سے پہلے ہے سا، لال اور وا۔ یاد رکھیے گا یہ کون کون سا حرف ہے؟ لال، لال، تا اور وا۔ دیکھیے عربی میں ہر ایک حرف کو اس کے مخرج سے ہی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، ادروائز جو ترجمہ ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اردو میں ان چیزوں میں ہم فرق نہیں جانتے۔ سب سے پہلے جانیں گے کہ ان تین حروف کا مخرج کیا ہے۔ دیکھیے یہ تین جو حروف ہے ان کو حروف الوسطی کہتے ہیں۔ وسطی مطلب جو درمیان میں ادا ہو، ہمارے ہونٹوں اور ہمارے حلق کے درمیان سے ادا ہونے والے حروف۔ کیا کیا حرف، یہ حروف پڑھنے کے لیے کیا کیا چیز ملانا پڑتا ہے؟ یہ تین حروف ادا کرتے وقت آپ کو زبان کا جو ٹپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹپ آف دا ٹنگ، زبان کی جو نوک ہے یہ والا حصہ، سامنے والا حصہ، اس کو آپ کو جو آپ کے اوپر والے دو دانت ہے جس کو ہم نے نام دیا تھا ثنایا علیا، ثنایا علیا، اوپر والے جو بیچ سامنے والے جو بڑے دو دانت ہے، ٹھیک ہے، اوپر والے، ان کے ساتھ، ان کے کنارے کے ساتھ ہمارا جو یہ زبان کی نوک ہے، ٹپ آف دا ٹنگ، اوپر والے دو دانتوں کا جو کنارہ ہے یہ تیز والا حصہ، اس کے ساتھ ملانا پڑے گا۔ جب یہ آپ اس کے ساتھ ملائیں گے تو یاد رکھیے گا یہ تینوں حروف جو ہے بہت ہی نرم ادا ہوتے ہیں، بہت ہی ملائم ادا ہوتے ہیں، بہت ہی نرم ادا ہوتے ہیں۔ کیسے ادا ہوں گے؟ لال، دیکھیے کیسے پڑھا جائے گا؟ لال، زال نہیں، تیز نہیں پڑھا جائے گا، لال۔ آپ اس کو ملائیے، آپ دیکھیے جب آپ ملائیں گے تو یہ خود بخود ادا ہوگا۔ ٹپ آف دا ٹنگ کو تھوڑا باہر نکالیے اور اوپر والے جو دو دانت ہے ثنایا علیا جن کا نام دیا تھا اس کے یہ کنارے کے ساتھ اس کو آپ ملائیے، لال، تا، وا۔ دیکھیے زال اور وا کی آواز ایک جیسی ہے، فرق کیا ہے کہ زال کو پڑھتے وقت ہم ہونٹوں کو گول نہیں کرتے، سیدھے طور میں پڑھتے ہیں زال، جبکہ وا پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، حالانکہ دونوں کی آواز ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہے۔ زال اور وا دونوں کی آواز سیم ہے، فرق یہ ہے کہ وا پڑھتے وقت ہونٹوں کو آپ گول کیجئے گا، جبکہ زال پڑھتے وقت ہونٹوں کو ہمیں گول نہیں کرنا۔ جیسا کہ آپ اس فگر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو زبان کا ہمارا جو یعنی جو ٹپ ہے جس کو ہم نے نام دیا تھا زبان کی نوک اور نوک کی لسان، اس کو ہم ملائیں گے جو اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کے کنارے کے ساتھ۔ انگلش میں کہیں گے ٹپ آف دا ٹنگ اینڈ دا انر ایج آف دا اپر ٹیتھ۔ انر ایج یعنی جو اوپر والے دو دانت ہیں ان کا جو ایج ہے یہ نوکیلا حصہ ہے، اس کے ساتھ ملانے سے لال، وا اور ثا ادا ہوتے ہیں، یعنی ثا، لال اور وا they come out when the tip of the tongue touches the edge of the two top front teeth، یعنی اوپر والے جو دو دانت ہے انسائزر جن کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ان کے ساتھ ٹپ آف دا ٹنگ ملانے سے یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں۔ میں نے صرف یہ بتایا کہ وا جو ہے اس کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کیجیے گا، جبکہ زال پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے۔ تو یہ مین فرق ہے زال اور وا کے آواز میں، البتہ آواز ایک جیسی ہے۔ کچھ مثالیں دیں گے کلیئر ہونے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم زال کی مثال دیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ اگر زبان زال پر زبر ہو، مفتوح ہو، پڑھیں گے را، ری، اگر مقصور ہو، زیر ہو، رو، را، ری، رو۔ زیادہ اچھی طرح سے یہ سمجھ میں آئے گا جب اس کو ساکن بنائیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ال، ال، یاد رکھیے گا زبان کو تھوڑا باہر نکالیے، ال،
अल, इल, इज नहीं पढ़ना, यानी तेज नहीं पढ़ना है। अल, इल, उल, बहुत ही नरम, बहुत ही मुलायम। जब आप इसको मखरज के साथ अदा करेंगे खुद ब खुद अदा हो जाए। इसी तरह सा की मिसाल, सा, ती, सू, साकिन बनाएंगे, माकबल मफ्तू। आस, बहुत ही मुलायम, बहुत ही नरम आवाज। आस, इस, उस, बहुत ही नरम, यानी बिल्कुल सीन की तरह तेज अदा नहीं करना है। ज़ा को मिसाल के साथ पढ़ेंगे हम। ज़ा, देखिए जाल की तरह पढ़ना है मगर होंठों को गोल करना है, मोटी आवाज निकालनी है। ज़ा, ज़ी, ज़ो, ठीक है। ज़ा, ज़ी, ज़ो, ठीक है। उसके बाद आल, इल, उल, बहुत ही नरम, होंठों को गोल कीजिएगा, जबान की नोक को ऊपर वाले दो दांतों के किनारे के साथ मिलाइएगा। अब मुरक्कबात में पढ़ेंगे हम जाल से। जाल की मिसाल, ज़हबा, उज़िना, यअख़ुज़ु, यज़हबु, याद रखिएगा, यज़हबु, यज़, बहुत नरम, थोड़ा सा जुबान जो है वो बाहर की तरफ आएगी। यज़हबु, इज़हब, मुज़निबीना, मुज़, जाल को नरम पढ़ेंगे, मुज़निबीना, मुज़निबीना, ठीक है। इसी तरह हम ता की मिसाल पढ़ेंगे, समरातुन, सा, बहुत ही नरम, बहुत ही मुलायम, जबान की नोक ऊपर वाले दो दांतों के किनारे के साथ मिलेगा, नोकीला हिस्सा उसके साथ मिलेगा। समरातुन, आसिमीना, युगासुन, असमारा, अस, बहुत नरम, असमारा, मिसलुन, बहुत नरम, वुस्क़ा, वुस्क़ा। अब क़ाफ को भी याद रखिएगा, क़ाफ को हमने पढ़ा था कि जब जबान की जड़ ऊपर के तालु की तरफ मिल जाती है मोटा पड़ा जाता है। यानी वो मखारिज जो हमने पढ़े हैं उनको तो पढ़ना ही है, उसके अलावा जो हम आज पढ़ रहे हैं उनको भी खास साथ साथ में मशक करनी है। वुस्क़ा, वुस्क़ा। ज़ा की मिसाल, ज़हरा, ज़हरा, ज़ा पढ़ते वक्त होंठों को गोल कीजिएगा। ज़िलालुन, ज़ी, सिर्फ ज़ा को पढ़िएगा, है, लाम, अलिफ, लाम, उसके बाद जो है बाकी हरूफ को पढ़ते वक्त आप होंठों को गोल नहीं करेंगे, सिर्फ ज़िलालुन। बहुत सारे पढ़ेंगे ज़ुलालुन, बहुत गलत पढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ ज़ा को आप मोटा पढ़ेंगे, बाकी जो हरूफ है उनको मोटा नहीं पढ़ेंगे। मोटा पढ़ने का मतलब यह है ज़ा को पढ़ते वक्त आप होंठों को गोल करेंगे, जबकि बाकी हरूफ जो ज़िलालुन में है इसमें आप होंठ गोल नहीं करेंगे। कैसे पढ़ेंगे? ज़िलालुन, ज़िलालुन। इसी तरह यंज़ुरूना, यंज़ुरूना। इस वक्त आप सिर्फ मखारिज पे तवज्जो रखेंगे, बाकी मैंने नून को कैसे पढ़ा इसको मैं बाद में बताऊंगा इंशाअल्लाह। यज़लिमु, एक चीज याद रखिएगा, बहुत सारे लोग इसमें ये गलती करते हैं कि ज़ा की आवाज को वो उसका रिबाउंड तरीके से पढ़ते, जैसे यज़लिमूना, बहुत गलत है ये, आवाज रोकिएगा। यज़लिमु, यज़, जबान की नोक ऊपर वाले दांतों का किनारा, यज़लिमु। हाफिज़, हाफिज़, फिज़, देखिए ज़ा को कैसे मैंने पढ़ा, हाफिज़, और यहाँ पर हा भी आ गया। हा को हमने पढ़ा वस्ते हलक से अदा होता है, बार बार मशक करने के बाद आपको ये सही अदा हो जाएगा। इसी तरह युज़लमूना, युज़, आवाज को रोकिए, युज़लमूना। इस तरह हमने जाना कि ज़ाल, सा और ज़ा, ये तीनों हरूफ कैसे अदा होते हैं जब टिप ऑफ द टंग, जबान की नोक को हम ऊपर वाले जो दो दांत है जिनको हमने नाम दिया था सनाया उलिया, उनके किनारे के साथ मिलाएंगे तो खुद ब खुद ये तीनों हरूफ नरम, मुलायम और बहुत ही आसानी के साथ अदा हो जाएंगे। सिर्फ एक चीज यहाँ पर मैंने बताया था एक्स्ट्रा, वो ये कि ज़ाल और ज़ा की आवाज चूंकि मिलती है तो इनकी आवाज में कैसे हम फर्क जानेंगे। ज़ा को जब पढ़ेंगे तो होंठों को गोल करेंगे, आवाज को थोड़ा मोटा अदा करेंगे। ये था हमारे पास ज़ाल, सा और ज़ा।
इसके बाद हमारे पास है जा, सीन और सौद। अब देखिए ये जो तीन हरूफ हम पढ़ रहे हैं ना, ये पिछले हरूफ जो हमने पढ़े थे सा, जाल, वा, उनके अपोजिट में है, यानी इनका मखरज भी करीब करीब है मगर ये तेज अदा होते हैं। पिछले हरूफ जो हमने पढ़े सा, जाल, वा, वो नरम अदा होते हैं, जबकि ये तीन हरूफ तेज अदा होते हैं। इनका मखरज क्या है? इनका मखरज है जब यही जबान की नोक या नोक लिसान, यानी जबान का जो टिप है, टिप ऑफ द टंग है, इनको हम नीचे वाले दो दांतों के किनारे के साथ मिलाएं। नीचे वाले दो दांत, ऊपर हमने पढ़ा था ना, बल्कि इनको हमने नीचे वाले दांतों के साथ मिलाना है। अगर थोड़ा सा ऊपर भी टच हो जाए कोई मसला नहीं, मगर कोशिश कीजिएगा उनको नीचे रखे और दांतों को बिल्कुल दबा के आवाज बीच में से निकालनी। कैसे पढ़ेंगे? जा, टिप ऑफ द टंग को नीचे वाले दांतों के साथ अंदर मिलाइए और पूरे जो ऊपर और नीचे वाले दांतों को आपस में मिला के उनके बीच में से आवाज निकालिए, तेज आवाज। जा, सीन और सौद। देखिए सीन और सौद की आवाज भी मिलती है, तो इनका फर्क कैसे जानेंगे? सौद को पढ़ते वक्त आवाज मोटी करेंगे। मोटी का मतलब उनको हमें मुंह भर के या होंठों को गोल करके अदा करना पड़ेगा। सौद कैसे पढ़ेंगे? जा, सीन और सौद। सौद होंठों को गोल कीजिएगा, फिर से जा, सीन और सौद। बहुत आसानी से पढ़ेंगे। इन्हें जबान की जो नोक है सनाया सुफला, यानी नीचे वाले जो बड़े दो दांत हैं उनके अंदर से उनको मिलाएंगे और ऊपर और नीचे के दांतों को हम आपस में मिला के आवाज बीच में से, दांतों के बीच में से तेज निकालेंगे। इंग्लिश में कहेंगे दे आर प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द टिप ऑफ द टंग एंड द इनर एजेस ऑफ द लोअर इंसाइजर्स, जिनको हमने नाम दिया था सनाया सुफला, अलॉन्ग विद द अपर इंसाइजर्स, यानी ऊपर और नीचे के दांतों को फिर आपस में मिला के आवाज बीच में से निकालेंगे। कैसे पढ़ेंगे? जा तेज आवाज, सीन और सौद। They come out when the tip of the tongue touches the edge of the lower incisors along with the upper incisors, यानी ऊपर और नीचे के जो सनाया है, सनाया उलिया और सनाया सुफला, उनको बीच में मिलाएंगे। टिप ऑफ द टंग को नीचे वाले दो दांत सनाया सुफला के साथ मिला के आवाज दांतों के बीच में से तेज निकालेंगे। जा, सीन और सौद। जा, सीन और सौद। आप देखेंगे मेरी आवाज में तेजी आ रही होगी। तो असल में ये जब हम दांतों को आपस में मिलाते हैं आवाज में तेजी आती है, क्योंकि अंदर से जो हम हवा निकालते हैं मुंह से वो तेजी के साथ दांतों के बीच में से निकल आती है। कुछ मिसालें देंगे क्लियर होने के लिए। जैसे यहाँ पर है जा, से सबसे पहले जा हम मुफरदात की मिसाल देंगे, उन पे हम मुख्तलिफ जो हमारे पास हरकत है ज़बर ज़ेर और पेश लगाएंगे, उसके बाद हम इसकी मिसालें देंगे। सबसे पहले जा की, जा, जी, जू। देखिए बिल्कुल जाल के अपोजिट में, जाल को नरम पढ़ते हैं जबकि इनको तेज पढ़ते हैं। जा, जी, जू, और उनको साकिन बना के माकबल जबर लाएंगे। आज, देखिए आवाज तेज निकलेगी। आज, आज, इज, उज। जाल को बिल्कुल हमने अपोजिट पढ़ा था, हमने पढ़ा था अल। देखिए जाल को कैसे अदा, जबकि जा को हम तेज अदा करते हैं। आज, इज, उज, तेज, क्योंकि जबान की नोक को हमने सना या सुफला के साथ अंदर मिलाया और दांतों को ऊपर वाले और नीचे वाले दांतों को मिला दिया। सीन को ऐसे ही पढ़ेंगे, सा, सी, सु, बहुत तेज सीटी की तरह आवाज निकलेगी। अस, इस, उस। अब देखिए मैं सीटी की तरह आवाज को निकाल रहा हूं। साद को सीन के साथ पढ़ेंगे, अलबत्ता साद को पढ़ते वक्त होंठों को गोल करेंगे। सा, सुई, सु, अस। देखिए अस और अस फर्क कीजिएगा, बार बार मैं बता रहा हूं क्योंकि हरूफ में फर्क करना, अल्फाज में या हमारे पास जो हरूफुल हिजा है उनमें फर्क करना अरबी में लाजमी है। माने कहां से कहां चला जाएगा अगर इसमें फर्क न जाने, और यही तजवीद भी है। अस, इस, उस। सौद को पढ़ते वक्त होंठों को गोल कीजिएगा, अलबत्ता सीन की तरह ये भी तेज पढ़ा जाएगा। अब मुरक्कबात में से मिसाल देंगे। सबसे पहले मफ्तू बना के जा की मिसाल, वज़न, वज़न, ज़। देखिए तेज मैंने अदा किया। वज़न, मकसूर बना के इन्हें जेर लगा के, ताजीरू,
ताजी जी ताजीरू मज़मूम पेश बना के, ज़ुबुरुन जू तेज ज़ुबुरुन, अब साकिन बनाएंगे माक़बल ज़बर, वज़दादू वज़, यानी जो भी हरफ जिसको अभी हमें मखरज जानना हो, अगर उसको हम साकिन बना के माक़बल ज़बर ज़ेर पेश लाएंगे तो वो हरफ निखर के सामने आता है, उसके मखरज को हम बिल्कुल ज्यादा तरीके से जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर है वज़ वज़दादू रिज़्क़ुन, सा साकिन माक़बल मकसूर, रिज़्क़ुन, क़ाफ को मोटा पढ़िएगा, क़ाफ का हमने मखरज जाना है कि ज़बान का आखिरी हिस्सा ऊपर के तालु के साथ मिल जाएगा। जुज़उन जुज़, ज़ा को तेज, जुज़उन। सीन की मिसाल कसबा कसबा यक्सिबु मकसूर, सुईला सुईला, सीन यहाँ पर मज़मूम है, इन्हें पेश है इस पे। अब इसको साकिन बनाएंगे, माक़बल मफ्तूल आएंगे, अस्लमा अस्लमा, बहुत आसानी के साथ अदा होता है। इसहाक़, हा का मखरज वस्ते हलक हमने पढ़ा है, वसतुल हलक यानी हलक का दरमियानी हिस्सा। इसहाक़, क़ाफ को भी मोटा पढ़ेंगे और क़ाफ का आपको मखरज पता है, ज़बान का आखिरी हिस्सा ऊपर के तालु के साथ मिल जाएगा। अब पुराने जो मखारिज है ना उनको भी हमें याद रखना है, तभी जाके इनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं करत के साथ। मुस्तकीमुन, की, क़ाफ को मैंने बताया था मखरज, यहाँ पर हम तवज्जो दे रहे हैं सीन की। मुस्तकीमुन, साद की मिसाल सदाक़ा, सा होंठों को गोल कीजिएगा मोटी आवाज के साथ, सदाक़ा, क़ाफ को भी पुर पढ़ना होता है, मोटी आवाज के साथ अदा करना होता है। सिरातुन, सी, साद को मोटा पढ़िएगा, सिरातुन। सुदूरुन, साद मज़मूम है यानी पेश के साथ है, साद साकिन बनाएंगे, माक़बल मफ्तूल आएंगे। अस्दाक़ु, अस, देखिए सीन की तरह पढ़ा जाएगा मगर मोटा यानी मोटी आवाज के साथ होंठों को गोल कीजिएगा। अस्दाक़ु। मिस्बाहुन, मिस, साद को मोटा पढ़िएगा, होंठों को गोल कीजिएगा। मिस्बाहुन। मुस्लिहूना, मुस्लिहूना, साद पे मशक, हा की मिसाल भी यहाँ पर है, मुस्लिहूना, हूना, मुस्लिहूना। इस तरह हमने जाना जा, सीन और साद, ये तीन हरूफ भी हरूफुल वसती है। वसती मतलब दरमियानी हरूफ, होंठों और गले के बीच में जो हरूफ अदा होते हैं। अब इसके बाद हम तीसरे वाला जो हिस्सा हमारे पास, यानी हमारे पास अभी तक गले का हिस्सा आ गया अल हलक़ु, उसके बाद हमने जाना हमारे पास अल लिसान वल अस्नान है। तीसरा हिस्सा जो है जहां से हरूफ अदा होते हैं वो है अशफतान, यानी होंठ, ठीक है। अशफतान कहते हैं होंठों से, तो होंठों से हमारे पास मैंने आपको बताया था 3 या 4 हरूफ अदा होते हैं। अगर हम 4 हरूफ मानते हैं तो सबसे पहला हर्फ जो होंठों से अदा होता है वो है फा। मगर याद रखिएगा जो हर्फ फा है इसको कुछ उलमा ने हरूफुल वसती यानी टीथ के साथ वाले जो हरूफ अदा होते हैं, टीथ और जुबान, और कुछ जो हजरात है उलमा है उन्होंने उसको हरूफ शफती या शफवी यानी होंठों वाले हरूफ से अदा किया है। वजह इसकी यह है कि फा को पढ़ते वक्त दांत और होंठ दोनों इस्तेमाल होते, और ये सिर्फ वाहिद हर्फ है जिसमें दांत और होंठ आपस में इस्तेमाल होते हैं। जो ऊपर वाले 2 दांत है जिनको हमने सनाया उलिया कहा, उनके किनारे को यानी जो तेज वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, जब हम नीचे वाले होंठ के अंदर वाले हिस्से के साथ मिलाएंगे उस वक्त फा अदा होता है। फा कैसे अदा होता है, यानी ऊपर वाले जो हमारे 2 दांत है सना या उलिया, उनका किनारा ये नोकीला हिस्सा जब नीचे हम होंठों के जो हमारा नीचे वाला होंठ है उसका अंदर वाला हिस्सा, यानी नीचे जो हमारे पास होंठ है उसमें हमारे पास 2 हिस्से, एक तो ऊपर वाला हिस्सा, उसको जब आप उंगली से देखेंगे तो वो खुश्क होता है, दूसरा है अंदर वाला हिस्सा, अगर उस पर उंगली आप फेरेंगे तो वो तर है, तर वाला हिस्सा। जब ऊपर वाले हों जो हमारे दांत है सना या उलिया उसके जो
किनारे अगर नीचे वाले होंठ के अंदर वाले हिस्से यानी तर वाले हिस्से के साथ मिलेंगे तो हर्फ फा अदा होता है, फा फा। कभी कभार हम अपने यानी जो हमारे बरसगीर के लोग हैं इसको फा के बजाय फा पढ़ते हैं, फा पढ़ना गलत है, ठीक है, फा नहीं पढ़ा जाएगा, इसको फा पढ़ा जाएगा, फा। क्योंकि फा पढ़ते वक्त ऊपर वाले दो दांत उनका किनारा नीचे वाले जो हमारा होंठ है उसके अंदर वाले हिस्से जिसको हमने नाम दिया है तरी वाला हिस्सा उसके साथ मिलाने से अदा होता है फा। होंठों को आपस में मिलाने से फा अदा नहीं होता, यानी ये फा नहीं है, फा नहीं है, ये फा है, फा। इंग्लिश में कहेंगे फा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द एज ऑफ द अपर फ्रंट टीथ एंड द वेट पार्ट ऑफ द लोअर लिप, यानी जो लोअर लिप का जो वेट पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, जो तर वाला हिस्सा है, उसके साथ हम ऊपर वाले दांत जो दो दांत है तना या उलिया जिनको नाम दिया है उनका नोकीला हिस्सा आपस में मिलाएंगे। तो फा कम्स आउट when the edge of the top front teeth touch the inside of the bottom lip। कैसे पढ़ेंगे? फा फी फू, यानी फा फी फू ये गलत है, फा फा फी फू। साकिन बनाएंगे, माकबल जबर लाएंगे, मफ्तू लाएंगे, पढ़ेंगे अफ इफ उफ, ठीक है, थोड़ी सी आवाज जारी रखेंगे, अफ इफ उफ। आप इनके मुरक्कबात का हम पढ़ेंगे, यादा करेंगे, फसादा फसादा मगफिरतुन मगफी फी फी नहीं, मगफिरतुन फुतिहत यफ़अलु मिफ्ताहुन मुफ्लिहून मुफ। देखिए कैसे आपने अदा किया, मुफ्लिहून। तो फा जो है ये हुरूफ शुफ्ती है, शुफ्ती मतलब जो हमारे होंठों से अदा होता है, और इसको पढ़ते वक्त ऊपर वाले जो दो दांत है तना या उलिया उनके किनारे को नीचे वाले होंठ का जो वेट वाला हिस्सा है, तर वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा, उसके साथ मिलाने से फा अदा होता है। उसके बाद है बा। बा जो है ये भी हरफी शुफ्ती है, यानी ये भी होंठों से अदा होता है और ये पढ़ना बहुत ही आसान है। जब दोनों होंठों का जो तरी वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा आपस में मिलता है तो हरफी बा अदा होता है, बहुत ही आसान। बा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द वेट पार्ट ऑफ द बोथ लिप्स, यानी हमारे दोनों होंठों का जो अंदर वाला वेट वाला हिस्सा है उसको मिलाने से बा अदा होता है, बा। It is articulated by closing the two lips together, but a stronger closure than the मीम। यानी मीम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे हम, बा को पढ़ते वक्त होंठों को मिलाएंगे मगर जो अंदर वाला तर हिस्सा है वही से, नॉर्मल तरीके से जैसे हम होंठ को बंद करते हैं उस तरीके से बा अदा होता है, बा। कैसे पढ़ेंगे? बा बी बू, ठीक है, अब इब उब। अब थोड़ा सा मैंने आवाज को ऊपर नीचे किया, इसको मैं बताऊंगा इसको क्या कहते हैं, अभी आप सिर्फ पढ़ने पे तवज्जो कीजिएगा। अभी मैं कोई सिफत को इसका जिक्र नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मखरज को पढ़ रहा हूं, ठीक है। अब इब उब। अब कोई साथी ऐसे पढ़ेगा अब इब उब, मैंने ऐसा नहीं पढ़ा, मैंने कैसे पढ़ा? अब इब उब, यानी आवाज को वापस लाते। ये एक सिफत है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारी जो कोशिश है वो मखारिज के ऊपर है, कैसे अदा किया जाता है। मुरक्कबात की मिसाल देंगे, ज़राबा हबीता हस्बुना क़ब्लु, क़ब्लु नहीं क़ब, बाकी आवाज को वापस ले आए हम, क़ब्लु इब्राहीमु युबसिरूना, स्वाद को मोटा पढ़िएगा, युबसिरूना। इस तरह हमारे पास बा हरफ अदा होता है। बा के बाद मीम हरफ, यानी हरफी मीम है, ये भी हुरूफ शुफ्ती है, शुफ्ती मतलब ये भी होंठों से अदा होता है। अलबत्ता मीम पढ़ते वक्त जो खुश्क हिस्सा है ना हमारे होंठों का, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जिसको आप इसके अपनी उंगली फेरने के बाद कोई तार आपकी जो उंगली है वो तार नहीं होती, इसको हम कहते हैं खुश्क वाला हिस्सा, ठीक है। जब आप खुश्क वाला हिस्सा, ड्राई पार्ट ऑफ योर बोथ लिप्स, उनको मिलाएंगे तो हमारे पास मीम अदा होता है, मीम। बा को तर वाले हिस्से के साथ मिलाने के साथ अदा होता है,
जबकि मीम पढ़ते वक्त खुश्क वाला हिस्सा होंठों का आपस में मिलाने से अदा होता है। इंग्लिश में कहेंगे मीम इज प्रोनाउंस्ड from the dry part of both lips, यानी it is articulated by closing the two lips together, यानी ऊपर वाला हिस्सा खुश्क वाला हिस्सा आपस में मिलाते हैं। कैसे पढ़ेंगे? मा, मी, मु, आम। देखिए आम पढ़ते वक्त आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि आपने कौन सा हिस्सा मिलाया। आम, इम, ठीक है। इसी तरह मुरक्कबात में से मना, समिआ, आइन का मखरज है, याद रखिएगा। यहकुमु, हा का मखरज है वस्ते हलक, वसतुल हलक। अमरुना, अम, देखिए मीम को पढ़ते वक्त दोनों खुश्क से मिलाइएगा। इमलाउन, कुंतुम, कुंतुम की बजाय मैंने पढ़ा कुंतुम, इसको मैं आगे इंशाल्लाह बताऊंगा मैंने ऐसे क्यों पढ़ा। अभी आप सिर्फ तवज्जो मीम पे रखिएगा कि मीम का मखरज कैसे। मीम के बाद जो एक और हर्फ वाव, यानी जो हमारे होंठों से अदा होता है वो है वाव, गैर मद्दा, यानी वाव में दो वाव है, एक तो मद्दा बनता है, एक मद्दे के बगैर। तो वाव जो है ये उस वक्त पढ़ा जाता है जब हमारे एजस, यानी जो हमारे होंठों के एजस है वो मिलते हैं, जबकि बीच वाला हिस्सा खाली हो जाता है। वाव प्रोनाउंस्ड बाय राउंडिंग ऑफ बोथ लिप्स, यानी दोनों होंठों को राउंड करेंगे, हमारे एजस यानी जो होंठों के जो हमारे हिस्से हैं दोनों साइड से वो मिल जाते हैं, जबकि बीच वाला हिस्सा खाली होता है, बिल्कुल गोल दायरा बन जाता है। इस तरह ये वाव अदा होता है। कैसे पढ़ेंगे? द अनलेंथनिंग वाव, अनलेंथनिंग मतलब गैर मद्दा, इज आर्टिकुलेटेड बाय फॉर्मिंग ए सर्कल ऑफ द टू लिप्स विदाउट टू लिप्स मीटिंग कंप्लीटली, यानी दोनों होंठ आपस में नहीं मिलते। कैसे पढ़ेंगे? वा, वी, वू, जैसे हम इंग्लिश में वाव कहते हैं ना, WOV, वाव, वाव, ऐसे वाव अदा होता है। आओ, ऊ, वादा, विल्दानुन, वुजूहुन, जौफुन, नूरुन, ये दो हिस्से मैंने काट दिए हैं। वजह यह है जब वाव साकिन माकबल जेर है ऐसी कंडीशन आप नहीं देखेंगे। तो इस तरह वाव अदा होता है। इसके बाद हम चौथे हिस्से पे आते हैं जहां से हमारे पास 3 हरूफ की स्पेशल कंडीशन आता होती है। इस चौथे हिस्से को हम कहते हैं अल जाऊफ। जो अल जाऊफ है यानी खाली हिस्सा हमारे मुंह का, इसमें से हमारे पास हरूफुल मद्दा अदा होते हैं। हरूफुल मद्दा यानी वो 3 हरूफ जो लंबे अदा किए जाते हैं। कौन कौन हरफ है? एक तो है बा, बा के साथ जब अलिफ हो तो वो अलिफ मद्दा करार दिया जाता है। ठीक है, अलिफ जो है वो है हर्फ मद्दा, यानी जब भी आप अलिफ को अदा करेंगे, जब भी आप अलिफ को अदा करेंगे, याद रखिएगा हमजा नहीं अलिफ, तो वो उस वक्त हर्फ मद्दा माना जाता है। तो अलिफ मद्दा जब भी अदा होता है, अल जाउफ यानी द एम्प्टी स्पेस इन द माउथ एंड थ्रोट हैज इन इट वन आर्टिकुलेशन पॉइंट फॉर द 3 लेंथनिंग लेटर्स, यानी 3 ऐसे हरूफ जो मद्दा के 3 हरूफ है वो अदा होते हैं जाउफ से, अल जाउफ से, यानी खाली हिस्से से, द एम्प्टी स्पेस इन द माउथ। एक हरफ है हरफ मद्दा और वो है अलिफ। अलिफ जब भी पढ़ा जाता है लंबे करके, यानी उससे पहले जबर होगा तो अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा जब भी पढ़ा जाएगा ये एक मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है, जैसे बा, बा। आप देखिए जब भी मैंने अलिफ पढ़ा आ लंबा करके, आप देखिए कोई भी हिस्सा मिला नहीं, तो खाली स्पेस जो है अंदर से आवाज बिल्कुल बाहर की तरफ निकल आई खाली स्पेस में, इसको आप अल जौफ कहेंगे, बा। इसी तरह वाव मद्दा होगा। वाव मद्दा कब होता है? जब वाव साकिन से पहले पेश हो, जैसे वो, आपने वाव अदा किया, आप देखिए कोई भी हिस्सा किसी के साथ नहीं मिला बल्कि खाली स्पेस से हर्फ बाहर निकला, वो। इसी तरह बी, या मद्दा। या मद्दा कब होता है? जब या साकिन से पहले जेर हो। तो अलिफ उससे पहले जब जबर हो यह अलिफ मद्दा करार दिया जाता है। वाव साकिन से पहले जब पेश हो तो वाव मद्दा होगा। या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। ये 3 स्पेशल कंडीशंस, मद्दा की 3 कंडीशंस जाऊफ से अदा होते हैं, खाली स्पेस से अदा होते हैं। इन तीनों हरूफ के कंडीशंस को याद रखने के लिए सिर्फ एक वर्ड आप याद रखिएगा, वो है
नूहीहा, नू में वाव साकिन माकबल पेश, तो वाव मद्दा आपको याद रह गया। ही या साकिन माकबल जेर, तो या मद्दा आपको याद रह गया। और हा अलिफ माकबल जबर हा पे, तो अलिफ मद्दा आपको याद रह गया। तीनों मद्दा के हरूफ को आपको नू ही हा एक लफ्ज याद रखना पड़ेगा। आपको तीनों हरूफ मद्दा याद रहेंगे और तीनों हरूफ मद्दा अल जौफ से अदा होते हैं। उसके बाद आखिरी मखरज है वो है अल खशयूम। अल खशयूम कहते हैं नोक, जो हमारी नोज है ना, नाक का बांसा, इस नाक के बांसे से इंग्लिश में कहेंगे होल ऑफ द नोज टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द माउथ, जो अंदर की तरफ हमारा यानी जो नाक का हिस्सा है ना, खाली स्पेस है, जब आप इसको बंद करेंगे तो आप देखिएगा आपकी आवाज नहीं आ रही। इसको हम कहते हैं अल खशयूम। अल खशयूम में हमारे साथ सिर्फ दो स्पेशल कंडीशन अदा होते हैं। एक है जब नून पे तशदीद हो, जैसे यहां पर देख रहे हैं इन्ना, और जब मीम पे तशदीद हो मिम्मा, इस कंडीशन को कहते हैं गुन्ना। गुन्ना, गुन्ना का मतलब होता है नाक के बासे में, नाक के स्पेशल हिस्से में अंदर वाला जो खाली स्पेस है, इसमें आवाज को रखना। अब देखिए जब नजला होता है तो ना इन्ना सही अदा होगा ना मिम्मा सही अदा होगा। नून तशदीद के साथ और मीम तशदीद के साथ इनमें गुन्ना होता है, आवाज जो है वो खशयूम में चली जाती है। और ये खशयूम में जो अदा होने की कंडीशन है, इसको हम गुन्ना कहते हैं। तो ये स्पेशल कंडीशन अल खशयूम में, यानी पांचवें हिस्से में, जो हमारा मखरज का पांचवा हिस्सा है, उसमें अदा होता है। तो इसके बाद हम एक राउंड लेंगे। हरूफुल हलकी हमारे पास 6 है, अल लिसान हरूफुल वसती हमारे पास 18 है, हरूफुल शुफ्ती यानी होंठों से अदा होने वाले 4 है। फिर नेसल कैविटी अल खशूम में एक कंडीशन है, गुन्ना अदा होता है नूर और मीम पे जब तशदीद हो, और एम्प्टी स्पेस में एक मखरज है जिसमें 3 हरूफुल मद्दा अदा होते हैं। तो इस पे हमारा आज का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कुछ कुरान की आयतें भी पढ़ेंगे और इनका एक तरह से इयादा भी करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे इस कोशिश को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।